उस शार को लेने के बाद आपका बॉडी में जितना भी टायर्डनेस होगा ना, सबसे पहले तो वो निकल जाएगा और आप बहुत फ्रेश फील करो। एज सुन एज यू टेक दिस नैप ना, यू विल फील सो एनर्जाइज्ड, सो हैप्पी एंड रेडी टू डू योर बेस्ट। कितना भी आप ट्राई करो, आपको हमेशा ही थका हुआ फील होता है। क्या आप भी स्कूल से आने के बाद बहुत थक जाते हो? हम लोग भी थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। So basically, you are not alone if this is happening with you. We all are in this, teachers included. तो हम लोगों को क्या करना है, देखो, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक जाते हो एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू फोकस अपॉन योर स्टडी, एंड बिकॉज कितना भी आप ट्राई करो आपको हमेशा ही थका हुआ फील होता है, तो आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले आपको स्कूल से आने के बाद शावर लेना है। अब आप ऑब्वियसली बोलोगे कि मैं इतना थके होते हैं, इतना ज्यादा हम लोग एक्टिविटीज स्कूल में करके आते हैं, शावर लेना इम्पॉसिबल लगता है। देखो, सबसे पहले आते ही एसी वाले रूम में तो डेफिनेटली नहीं जाना, बिकॉज वो तो फिर क्या ही कहने। आपने फटाफट आते ही एक छोटू सा शार ले लेना है। उस शार को लेने के बाद आपका बॉडी में जितना भी टायर्डनेस होगा ना, सबसे पहले तो वो निकल जाएगा और आप बहुत फ्रेश फील करोगे। सो डेफिनेटली उससे आपका ब्रेन का फंक्शन भी बूस्ट होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट आप अपने बना पाओगे। उसके बाद सो जाओ। यस, यू हर्ड मी राइट। आफ्टर टेकिंग अ शावर यू स्लीप फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। एटलीस्ट आई एम सेइंग यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली कंसीडर दिस एज अ पावर नैप। As soon as you take this nap, now you will feel so energized, so happy and ready to the world and do your best. So definitely आप बहुत सारी चीजें आई नो पहले से ट्राई करके आ चुके होंगे, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टेकिंग अ नैप एटलीस्ट फॉर 30 minutes so that you can train yourself or your brain for the next 5 to 6 hours where you will not be drained out of your energy. Next up, eat healthy snacks. I know, this whole generation, this whole market, this whole e-commerce websites are filled with junks, and we all consume junks. We know that, right? आपको अपनी ब्रेन को ट्रेन करना है कि आप जंक्स को छोड़ के थोड़ा हेल्दी स्नैक्स पर फोकस करो. इट कुड बी सिंपली वाटर. Anytime you are feeling like you want to have momos or you want to have Maggie or you want to have any sort of fried food, remember it is going to slow down the process of your brain function. How fast your brain works, how concentrated you are, depends upon what you give your body. You have heard that term, you are what you eat. So basically, if you are eating fruits, you are eating green vegetables, so you are what that healthy, energized, and very productive. When you are eating, when you are consuming unhealthy foods, it becomes very difficult to concentrate. Your brain function will slow down. So focus upon healthy eating. I'm not saying ki you should avoid junk or you should just neglect eating them. Treat yourself some other day, maybe once in a week or maybe twice in a week, but at least not every day. Okay, so you can choose to have 2 weekly 2 days in a week where you can treat yourself, or maybe one if you have more hold against your those so called क्या बोलते हैं उनको, mood swings or cravings basically. So have a habit of eating healthy foods. Next, you have to drink a lot of water. If you're feeling tired, so your body is dehydrated, I know a lot of people consume caffeine in form of coffee or maybe some other source. So focus upon having a glass of water instead. That will make you hydrated, that will make you uh, more concentrated. You absolutely, you will be glowing, your skin will be healthy, right? So have a habit of drinking water and you will be always feeling fresh. So you can obviously try this method as well. Then you should be studying in a brightly lit room. Obviously it is a no brainer, and whenever we are in the dark room, we all feel sleepy, right? And we should not be doing that. Instead we should be studying in a bright room where we have a lot of chart papers, mind map pasted. It's very creative, it's very productive. So that is also going, sufficiently light होगी, environment आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपका concentration भी अच्छा होगा, आपका brain बहुत alert रहेगा, right? आपको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना है भाई, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होना। अभी भी ये वीडियो बेड पे बैठ के देख रहे हो तो क्या फायदा? ठीक है, अपने बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। प्रिफरेबली आप टेबल और चेयर यूज करो तो बेस्ट ही हो जाएगा। अभी स्टूडेंट हो, अभी बहुत आगे जाना है स्टूडेंट लाइफ में, तो डोंट बी गेटिंग टू कंफर्टेबल अराउंड द एनवायरमेंट कि मैं तो लेट के भी पढ़ लेता हूँ। दैट इज गोइंग टू जस्ट मेक यू अ लेजी, है ना, काउच पोटैटो बन जाओगे धीरे धीरे। देन रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना फोन साइलेंट कर सकते हो फॉर
you can follow some technique when you will be studying for 30 minutes, then you will be using your mobile for 10 minutes. So आपका brain भी happy, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, सब कुछ happy, यहाँ पे मजा ही आ जाएगा. स्पेशली सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिया करो, अपना डोर बंद करके कंसंट्रेट करो, अपना फोन किसी को नहीं देना चाहते हो अलमारी में रख के लॉक कर दो ताकि कोई और भी ना देखे, वरना तुम्हें पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक. वॉक करने से आपको थोड़ा अच्छा फील होता है. यू आर बर्निंग कैलोरीज, यू आर स्ट्रेचिंग, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर एनर्जाइज, आप फोकस्ड हो, आप बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो, तो आपका रिटेंशन ऑफ द चैप्टर भी या कुछ भी पढ़ रहे हो तो ज्यादा याद रहेगा. जब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है तो टॉपिक स्विच कर लिया करो, है ना. नई हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो साइंस पढ़ लो, साइंस नहीं अच्छी लग रही है तो एसएसटी पढ़ लो. ठीक है, ये करना जरूर, ये बहुत ज्यादा आपकी ब्रेन को ट्रेन करता है ना, टू रिलैक्स, टू एंटर. एंड वेन एवर यू फीलिंग टायर्ड और बोर्ड आउट ऑफ अर सब्जेक्ट, तो आपको ये मोमेंटम चलता रहता है. देन इजी टास्क फर्स्ट करना है, जो आपको इजी लग रहा है वो कर लो, आपका ब्रेन नाचने लगेगा खुशी से. एंड देन यू कैन ऑब्वियसली देन गो टू हार्डर टॉपिक्स और हार्डर सब्जेक्ट, और जो आपको समझने में थोड़े टफ लगते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे, एंड आई थिंक ये बहुत ही प्रोडक्टिव चीज है, और ये मैं इनमें से बहुत सारी चीजें खुद भी फॉलो करती हूँ. लाइक आई डोंट स्टडी, I don't sit in the dark environment. I obviously sit whenever I'm making the PPTs, whenever I'm working on a chapter. I always prefer sitting on a bright lit room. I eat healthy food, and sometimes obviously I eat. Yesterday only I had a slice of pizza, or maybe two, or maybe three. But that doesn't mean for entire week I'll be having pizza, right? So obviously I also treat myself. I am a kid like you guys only, and a dil to bachcha hai ji. So this is all we are doing, and you should also be doing. And now I'm signing off, so I'll see you in the next class. Thank you so much everyone, sending you lots of love. Bye, take care.